Dear students, today I am going to explain Beehive, which is the book of class 9th, and lesson is second, the sound of music. This is such a lesson which inspire those person who become hopeless after getting some disability in his body, but they don't know in what way they are able. Same lesson is here. A girl get disabled by hearing, but after some time he generate his ability and listen everything and become a good listener. So let's start the sound of music. Starting from here, rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Rush hour crowds. When any train coming from underground platform, just listen the voice of the train, you will listen that they are pushing roughly to each other. At that time, a slight girl looking younger than her 17th years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. A slight girl meaning a very small girl, looking younger than her 17th years, who was 17th years below. She approached excitedly and felt vibration of approaching the train. यानी एक 17 साल से कम एक छोटी लड़की जो अभी तक नर्वस थी, परेशान थी, अपने वह वाइब्रेशन कंपन को सुनती है अप्रोचिंग द ट्रेन, ट्रेन के आते हुए कंपन को सुनती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. दिस वॉज हर फर्स्ट डे व्हेन शी रीच्ड रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था. एंड daunting enough meaning she was much frightened for any tinger fresh from Scottish farm. She was much afraid. She was much frightened because her class was first day in that school. She was profoundly deaf. She was profoundly deaf मतलब वह बहरी थी. एवलिन जेनी loss of hearing had been gradual. She lost her hearing gradually मतलब धीरे धीरे वह अपने श्रवण क्षमता को खो दिया, सुनने की क्षमता को खो दिया. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मम्मी को याद है वह उस समय जब वह कुछ देख रही थी और जब वह 8 वर्ष की थी, एवलिन अभी भी पियानो चलाने के लिए इंतज़ार कर रही थी. शी फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग. कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गलती है. दे कॉल्ड हर नेम. वे उसके नाम से बुलाए. शी डिड नॉट मूव. लेकिन वह हिली नहीं. वहाँ से जरा सा भी उसमें कोई गति नहीं हुआ. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड. मैंने अचानक महसूस किया कि उसने नहीं सुना. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी वाज हर मदर. उन्होंने बताया
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक एवलिन ने अपने आप को डीफनेस बढ़ने से, अपने इस श्रवण क्षमता की कमी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाया. बट बाय द टाइम, लेकिन समय अनुसार, शी वाज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a deaf classes specialist. तो सी कंसील्ड हमसे, वह अपने आप को छिपाई, लेकिन जब उसके मार्क्स 11 मार्क्स आए तो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस, एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस जो थी, उसके माता पिता को उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कही. उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कही कि इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और यह तब उस समय पाया गया कि उसका जो श्रवण क्षमता की शक्ति थी वह अत्यधिक क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है. मीनिंग वह काम योग्य नहीं रह गई है. They were advised that she should be fitted with hearing aids. उन्हें एडवाइस दिया गया कि श्रवण यंत्र जो होता है, श्रवण सुनने वाला जो यंत्र होता है, मशीन होती है, उसके साथ उसे फिट कर देना चाहिए. सेंड टू ए स्कूल फॉर डीफ, और जो बहरों के लिए स्कूल होता है वहाँ उसे भेज देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक. अचानक सब कुछ काला दिखने लगा. काला दिखने का मतलब क्या था? What she were thinking was nice for future, but due to not hearing, all thing was gone, says Evelyn. एवलिन ने कहा. But Evelyn was not going to give up. एवलिन उसे त्याग करने नहीं जा रही थी, छोड़ने नहीं जा रही थी. Meaning she was so brave that she was not ready to give up her aim. She determined to lead a normal life. उसने अपना एक साधारण जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया. एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट दिखाया. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग विथ जाइलोफोन. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन चलाते हुए देखा. एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और निर्णय किया कि वह उसके साथ खेलना चाहती है, चलाना चाहती है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. बहुत सारे अध्यापक उसे डिस्करेज्ड किए, माने हतोत्साहित के बिकॉज शी वाज डीफ एंड दे टोल्ड दैट यू कांट डू दिस. बट परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स spotted her potential. Percussionist meaning a person who beat drums, who plays drums. एक ड्रम बजाने वाले टीचर जिनका नाम रॉन फॉब्स था, उन्होंने इसके पोटेंशियल, इसकी क्वालिटी को, इसकी क्षमता को समझा और उसे उत्साहित किया. He began to tuning two large drums to different notes. और वे दो बड़े ड्रम को डिफरेंट, अलग अलग तरीके से बजाने लगे. डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स. अपने कान से मत सुनो. ही वुड से, वो कहा करते थे. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इसे किसी दूसरे ढंग से सुनने की कोशिश करो. से एवलिन कहती है. सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने अनुभव किया. आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. मैंने एहसास किया कि मैं अपने वेस्ट के ऊपर
और मैक्सिमम वेस्ट के नीचे से सुन सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को पुनः रिपीट किया। एंड सून एवलिन, शीघ्र एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने एहसास किया कि वह कुछ नोट्स को, कुछ बातों को वह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अन्य अंगों से वो एहसास कर सकती है, सुन सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मुझे अपने बॉडी, दिमाग